Okay, welcome dear students. So we will have our class today for redox reaction again, and this would be the concluding part for redox chapter. So what now more we have to learn here is the redox reaction and electrode potential. Electrode potential and redox reaction. We know redox reaction. So electrode potential, this is the new term. So let us go back to redox reaction again. We have several redox reaction with us, like we have this cobalt solid plus nickel Ni2 plus aqueous, यानी water medium will give cobalt 2 plus aqueous plus nickel Ni solid. What is happening here? Cobalt metal is converted into cobalt ion. And what kind of reaction? Here cobalt oxidation number is 0 and here cobalt oxidation number is plus 2. So there is an increase in oxidation number, correct? Increase in oxidation number means it is a oxidation reaction, or oxidation is loss of electron. So loss of electron, and this is a oxidation reaction, correct? Now the next reaction which we can see is nickel Ni2 plus changes to Ni solid. Here plus 2 oxidation state of nickel get changed to 0 oxidation state, decrease in oxidation state or number, so we call it as a reduction reaction. And reduction reaction is a gain of electron. So here this Ni2 plus has gained 2 electron and get converted to nickel solid with 0 oxidation state. So this is a redox reaction where cobalt get oxidized to cobalt ion and nickel ion get reduced to nickel metal. Similar kind of reaction, very easy, we can take here Zn solid zinc plus copper Cu2 positive aqueous get converted to Zn2 positive aqueous plus Cu solid. Now what is happening here? Same logic we can apply. Zn solid get converted to Zn2 plus. What is happening to the oxidation number? Oxidation state 0, say plus 2. There is increase in oxidation number. Increase in oxidation number, reaction is oxidation. Oxidation is loss of electron. So this information we can write here. Here we see this copper copper 2 positive plus 2 oxidation state get changed to the 0 oxidation state, decrease in oxidation number, we call this as a reduction reaction, and this is possible by this is possible by gain of electron. So this is what we can identify redox reaction 1 and redox reaction 2. We also can call them as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका तो एक एक्सपेरिमेंट भी हम आगे करने वाले हैं 12th क्लास में. होता क्या है, अगर मैं इसी को थोड़ा इलेबोरेट करूं तो हम क्या लेते हैं, एक कंटेनर में
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्वस मीडियम, we know this is going to be blue color solution. To this we add some zinc powder, we add some amount of zinc powder, zinc dust, finely divided zinc dust, zinc powder. What we see after some time, we get ZnSO4 as the brown color solution, whereas copper settles at the bottom. So this is the chemical reaction which is taking place. So what is happening? CuSO4 blue color solution, उसमें आपने जिंक डस्ट ऐड किया तो आपको मिल गया एक ब्राउन कलर सॉल्यूशन, और जो कॉपर आयंस थे वो एज ए कॉपर मेटल यहाँ पर हमें सेपरेट आउट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इसी रिएक्शन को हमने आयनिक फॉर्म में लिखा, Zn सॉलिड दिख रहा है, CuSO4 में ये 2 प्लस ये 2 माइनस, तो ये Cu2 प्लस आ गया यहाँ से। वैसा ही प्रोडक्ट साइड में Zn2 प्लस, तो Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जिंक आयनिक फॉर्म में क्या आएगा? Zn2 प्लस, और कॉपर ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। सो दिस इज इन फैक्ट a displacement reaction. Now this displacement reaction can be studied in two different ways. इसको कैसे carry out करने का है, this we will learn now. This displacement reaction, copper sulfate and zinc dust. We will see this. What happens here? We take a container. In that container, we take a container filled with copper sulfate solution. So it is filled with copper sulfate solution. And in this we place a zinc rod or a zinc plate. तो इसमें हम यहाँ पर एक जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक रॉड लगा देते हैं। क्या होता है कि अब रिएक्शन होगी, इसमें कैसी रिएक्शन होगी कि यहां से ये जिंक मेटल से जिंक आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे। तो रिएक्शन क्या होगी? Zn सॉलिड यानी इलेक्ट्रोड में से जिंक आयन, Zn2 पॉजिटिव आयन, दिस Zn2 पॉजिटिव आयन दे गो इनटू द सॉल्यूशन। और CuSO4 में क्या होगा कि Cu2 पॉजिटिव आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो Cu सॉलिड करके वहां डिपॉजिट हो जाएंगे। देखिए 2 रिएक्शन अलग अलग बॉक्स में आ गई। पहला क्या हुआ? जिंक passes into the solution in the form of zinc ions giving 2 electrons. These 2 electrons are taken up by कॉपर आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ये CuSO4 में कैसे मिलेगा आपको? Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, 2 माइनस में। तो ये Cu2 प्लस आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और आपको Cu सॉलिड मिलेगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल कंटेनर एंड वी सी दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ this same experiment can be more simplified manner, can be explained with the help of Daniell set. डायग्राम बना है यहाँ पर। अब ये डायग्राम में क्या देख रहे हैं हम कि हमने जिंक का एक कंटेनर अलग बनाया है, कॉपर का एक कंटेनर अलग बनाया। तो हमने एक बीकर लिया, इन दैट बीकर वी हैव प्लेस्ड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, and in that zinc sulfate solution we have placed a zinc electrode here. So this is a zinc electrode dipped in zinc sulfate solution. दूसरा कंटेनर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट solution and a zinc plate or zinc rod is immersed in this copper sulfate solution
So copper plate dipped in copper sulfate solution, राइट हैंड साइड कंटेनर, और लेफ्ट हैंड साइड का कंटेनर क्या है, जिंक सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड. So these two container are separate, but they are electrically connected through metallic wire, and this zinc will act as an anode, whereas copper will act as cathode. अभी हम आपको समझा देंगे जिंक एनोड कैसे बन गया. एनोड, दिस विल बी a negative electrode, whereas copper will be a positive electrode. अब ये कॉपर कैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना ये भी देख लेंगे हम, है ना. कॉपर एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, विल सी दैट पार्ट. तो कॉपर एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, copper is a positive electrode. So two electrodes connected through metallic wire, and to have that flow of current we will place here a voltmeter. The voltmeter is connected between them through a switch with metallic wire, and more interestingly these two solutions are connected through salt bridge. Salt bridge is a glass tube filled with KCl solution, potassium chloride or potassium nitrate solution. So this tube which is having here opening blocked by cotton plug, तो ये salt bridge हो गया. Salt bridge क्या करता है, दोनों solution को connect करता है. और सॉल्ट ब्रिज में क्या फील्ड रहता है, सॉल्ट ब्रिज इज हैविंग, सॉल्ट ब्रिज को लिख देते हैं यहां पर, सॉल्ट ब्रिज इज हैविंग KCl solution or KNO3 solution with some binding material, we call it as agar-agar gel. agar-agar gel बाइंडिंग मटेरियल है KCl सोल्यूशन. नहीं तो क्या KCl सोल्यूशन ऐसा रखेंगे तो पूरा सोल्यूशन KCl का क्या हो जाएगा, कंटेनर में चला जाएगा. तो उसको एक सेमी सॉलिड मास बनाने के लिए उसमें एक जेल डालते हैं. वी कॉल इट एज अगार अगार जेल. इट इज फिल्ड इन दिस ट्यूब. सो सॉल्ट ब्रिज समझ रहा है. सॉल्ट ब्रिज in fact is a glass tube filled with potassium chloride or potassium nitrate solution with binding material agar agar gel, and it is having cotton plug at this two end, and these two ends are dipped in two separate solution. One is zinc sulfate, another is copper sulfate. This construction is what we call as a Daniell cell. आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी. So this is a Daniell cell. Now what happens in this Daniell cell? This redox reaction takes place in Daniell cell. Let us learn this redox reaction separately now. As I told you, what is happening here? Zn solid passes into the solution in the form of zinc ion, leaving behind electrons. Loss of electron है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन. करेक्ट है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिंक पासेस इनटू द सॉल्यूशन. अगर मैं यहां दिखाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये वाले इसमें क्या आ रहे हैं, जिंक आयंस आते जा रहे हैं, और बच क्या रहा है इलेक्ट्रोड पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर होते हैं थ्रू मेटालिक वायर टू द अदर इलेक्ट्रोड. सो व्हाट वी सी, Zn solid passes into the solution in the form of zinc ions, leaving behind electron on this electrode, and electrode as it has electron will be transferred to the other electrode. अब अगर ये इलेक्ट्रोड पे
नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो देखिए मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज लिखा था, एंड इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी कॉल इट एज एनोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये डेनियल सेल जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वी कॉल इट एज एनोड। Now this electron flows through metallic wire and passes to the other electrode. When it is passes to the other electrode, what is happening here? ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें के कॉपर आयंस देखते जाएंगे आप, है ना, इसमें के कॉपर आयंस, दिस कॉपर आयंस विल टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। तो दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, एक्वस लिख दिया, विल टेक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, जिंक के तरफ से, एंड विल प्रोवाइड कॉपर सॉलिड। तो ये कॉपर आयंस क्या होंगे, सॉल्यूशन में के इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, and these copper ions get deposited on this electrode। तो सॉल्यूशन में के कॉपर आयंस क्या होंगे, ये इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगेंगे। उससे क्या होगा, सॉल्यूशन में के कॉपर आयन खत्म होने लगेंगे और ये सब कहाँ डिपॉजिट होने वाले हैं, ये इलेक्ट्रोड पे। उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड दिस विल ग्रो इन साइज, दिस कॉपर इलेक्ट्रोड विल ग्रो इन साइज, क्योंकि सॉल्यूशन में के कॉपर आयंस रिड्यूस होके इस प्लेट पे डिपॉजिट होने लग गए। वैसा ही इफेक्ट अगर यहां देखें तो क्या दिखेगा कि जब ये जिंक प्लेट में से जिंक आयंस सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, दिस विल रिड्यूस इन साइज, ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाएगा, धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाएगा, क्योंकि इसमें से जिंक आयंस कहां जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो ये पतला होते जाएगा और ये मोटा होते जाएगा, ये इसके आयंस ये करोड होते जाएगा, ये सॉल्यूशन में जाएंगे, और इसमें यहां क्या हो रहा, उल्टा, सॉल्यूशन के आयंस प्लेट पे जमा होते जा रहे हैं। तो ये डेनियल सेल का वर्किंग हो गया। फिर से एक बार क्या किया हमने डेनियल सेल में, एक कंटेनर लिया, उसमें ZnSO4 सॉल्यूशन लिया, ZnSO4 में जिंक इलेक्ट्रोड डिप किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डिप किया, दोनों इलेक्ट्रोड को मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया और सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से, सो दैट मूवमेंट ऑफ आयन का जो फ्लो है वो सॉल्ट ब्रिज से होगा और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो मेटालिक वायर से होगा। फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन क्या देखेंगे कि Zn solid passes into the solution in the form of zinc ions, we get oxidation reaction। electron passes through this metallic wire, go to the other electrode, और ये इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि यहां से कॉपर आयन सॉल्यूशन में के the copper ions from the solution will take up electron and get deposited as copper metal, and copper metal when get deposited, this electrode grows in size, whereas zinc electrode reduces in size। When electron flows from anode to cathode, that is from negative electrode to positive electrode, there will be a potential difference across the two electrode, potential difference across the two electrode will generate potential difference between two electrodes, and this potential difference we can see in the voltmeter। So that means each electrode has its own potential, so we get the term electrode potential, correct, electrode potential। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट विल जनरेट द करंट हियर।
which we can see in the voltmeter. करेक्ट आइडिया. अब हमने क्या किया, ये रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा. अब रेडॉक्स रिएक्शन से हमको एक नया टर्म मिल गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एवरी इलेक्ट्रोड हैज इट्स ओन पोटेंशियल. सो जिंक इलेक्ट्रोड हैज इट्स ओन पोटेंशियल, कॉपर इलेक्ट्रोड हैज इट्स ओन पोटेंशियल. और जब इनका डिफरेंस रहेगा तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड. Now, this electrode potential can be standardized. We call it as standard electrode potential. We call it as standard electrode potential, and this is denoted by E degree. Standard electrode potential. What do we mean by standard electrode potential? Standard electrode potential कब होगा? When the ions, यानी जो solution आपने लिया है, ions have molarity, यानी उसका concentration, molarity of 1 mole at 298 Kelvin. Then the potential will be called as standard potential. Once again, when the solution which we are taking here is of 1 molar at 298 Kelvin, then that potential of an electrode is known as standard electrode potential, and it is denoted by E degree. हम आपको असाइनमेंट देंगे तो उसमें ये सब डेफिनेशन रहेगी. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when the concentration of ions of solution of 1 molar, यानी यूनिटी 1 molar, उसका concentration रहेगा और टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन पे, तो जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पे आएगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? ई डिग्री से. नाउ अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का भी हो सकता है, रिडक्शन का भी हो सकता है. करेक्ट है. तो इससे हमें क्या मिलेगा? एक रेडॉक्स कपल मिलेगा. रेडॉक्स कपल कैसे मिलेगा? जैसे यहां पर मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूं क्या? Zn सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस लिख सकते हैं ऐसा. Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये. कॉपर के लिए क्या लिखूंगा मैं? आप बोल सकेंगे मुझे कॉपर के लिए क्या लिखेंगे? Cu2 प्लस विल गिव Cu. तो ये एक रेडॉक्स कपल हमको मिल गया यहाँ पर. करेक्ट है. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या है? significance of standard electrode potential. हमने यहां पर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेडॉक्स कपल, कुछ रेडॉक्स कपल के ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिस्ट बनाया. आप जो भी बुक फॉलो करेंगे उस बुक में ये दिया रहेगा. इसे हम कहते हैं EMF सीरीज. EMF सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज, है ना. EMF सीरीज या पोटेंशियल सीरीज. तो ये सब पोटेंशियल दिया हुआ देख रहे हैं आप लोग. इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला, इंटरेस्टिंग पार्ट हाइड्रोजन का. देखेंगे आप अच्छे से. हाँ, लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं हो रही है, बट यू कैन गेट इट करेक्टली. Under standard condition, hydrogen gas electrode is having a potential almost zero. Under standard condition, hydrogen gas electrode has a potential 0 volt. तो इसे एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन,
298 केल्विन और गैस इलेक्ट्रोड है तो इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 3 कंडीशन आ गई तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, जिसको हम STP करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी आ गया, प्रेशर भी आ गया 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ गया 1 मोलर। सो दिस इज व्हाट हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल फिक्स किया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू 0.0 वोल्ट। इसके ऊपर सारे रेडॉक्स कपल का पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसके नीचे सारे इलेक्ट्रोड रेडॉक्स कपल का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। अब ये टेबल का एप्लीकेशन क्या है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। इसको थोड़ा सा ही हम लोग यहाँ 11th में डिस्कस करेंगे। 12th क्लास में एक चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें इसके सारे एप्लीकेशंस और इससे बेस्ड क्वेश्चंस। Many questions asked in state board as well as in competitive exam. Every competitive exam has a question on electrochemistry और वो most of the time ये EMF सीरीज से आता है। तो इसको अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है दैट वी विल सी। तो राइट नाउ हमने क्या किया है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सम रेडॉक्स कपल, ऑक्सीडाइज फॉर्म प्लस n टाइम्स इलेक्ट्रॉन, ये जो है n टाइम्स इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म है, उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या मिलेगा हमको, रिड्यूस फॉर्म। जैसे यहां पर F2 plus 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव ट्वाइस F minus 1। यहां पर देखेंगे Zn यानी बिलो हाइड्रोजन Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Zn सॉलिड। तो अब यहां से इसका एनालिसिस, इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा हमको सीखना है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता किया, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमने एक टेबल बनाया। कुछ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू में रहता है, किसी का पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू में होता है, और इन सब का स्टैंडर्ड क्या हमने कंसीडर किया है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। वी कंपेयर विथ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कि उसका पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है या उसका पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है। ज्यादा है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कम आ गया तो नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस EMF सीरीज को, इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। क्या देखते हैं हम लोग कि अबाव हाइड्रोजन जो भी रेडॉक्स कपल है, ये इनकी टेंडेंसी क्या है और इनकी टेंडेंसी क्या है बिलो हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से आपको ये ज्यादा आसानी से समझेगा, मैं इसे समझाता हूं। बिलो हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स है, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी हमने सबको गेन किया है यहां पर, इसीलिए इनकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। करेक्ट है, दे हैव अ टेंडेंसी to donate electron, but if they take electron, if they gain electron, their respective potential is noted down here. So alkali metals, they have a tendency to donate electron. They have tendency to donate electron, whereas this fluorine has a tendency to gain electron. जैसे हैलोजन में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको न्यूट्रल होने के लिए, है ना, 7 है, तो इट इज ऑलवेज रेडी टू गेन इलेक्ट्रॉन। दोज विच आर रेडी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो रिडक्शन। करेक्ट है, दोज विच आर रेडी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा वो एजेंट अपोजिट होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट है ये सब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे। टॉप मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका पोटेंशियल है
2.87। अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसका पोटेंशियल 2.87 है तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट अंडरगोज रिडक्शन, रेडी टू gain electron. And what happens to alkali metal? They are ready to lose electron, so they will undergo oxidation. और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं? उल्टे एजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ऑक्सीडेशन जहां पर होगा वो कौन से एजेंट बनेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां रिडक्शन होगा वो कौन से एजेंट बनेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज द क्रॉस कनेक्शन, वी हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, तो ईएमएफ सीरीज में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट। अबव हाइड्रोजन will have positive electrode potential, below hydrogen have negative electrode potential. All the element redox couple which are placed above hydrogen are good oxidizing agent, whereas below hydrogen all are good reducing agent. अब इस सीरीज का एप्लीकेशन क्या है? आपको एक एप्लीकेशन इसका समझाते हैं। ये सीरीज का एप्लीकेशन क्या है? ये डेनियल सेल समझा आपको, जिंक इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, two solutions are connected through salt bridge, whereas two metal electrodes are connected through metallic wire. और रिएक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पर? रिएक्शन कौन सी होती है? जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन पास होंगे, कॉपर का होगा रिडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसका एप्लीकेशन जो है अपने पास में वो क्या है कि application of this EMF series, we can predict whether redox reaction will be spontaneous or not. Spontaneous का मतलब पता, spontaneous or not. This we can predict by using this EMF series or standard electrode potential of redox couple। और इसका आंसर क्या रहता है कि जब भी sum of standard electrode potential sum of standard electrode potential is 1 or more than 1, then redox reaction is spontaneous। आगे आंसर आपको, we can predict whether the redox reaction which is taking place in a Daniell cell will be a spontaneous or not. This we can judge by using this standard electrode potential। ये electrode potential को ऐड कर दो और एडिशन का जो सम रहेगा अगर वो 1 और मोर देन 1 आ गया तो redox reaction spontaneous हो जाएगी, है ना। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ कंसिडर करते हैं और हमारे पास में उसकी वैल्यू भी दिया हुआ है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये Fe इलेक्ट्रोड है, Fe3 पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल कितना दिया है हमारे पास में? 0.77। और आयोडीन को कंसिडर करते हैं, आयोडीन, इसका पोटेंशियल जो दिया है हमको आयोडीन इलेक्ट्रोड का वो 0.54 है। अब इसमें कैसे हम फॉलो करेंगे? दिस वी हैव टू सी नाउ। व्हाट वी विल सी इज इन दिस केस वेदर द रिएक्शन, ये दो इलेक्ट्रोड दे दिए आपको, है ना, इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2,
दोनों का पोटेंशियल दिया। ये दोनों का रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये हमको रिपोर्ट करना है। तो वो कैसे फॉलो करेंगे? वी विल राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन, we will write electrode reaction and we will do the addition of their potential। तो पहला इलेक्ट्रोड कौन सा है अपने पास में? Fe3 plus 1 electron get converted to Fe2 plus। इसका पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है आयोडीन I2 plus 2 electron will give twice I minus 1 और इसका पोटेंशियल है 0.54 वोल्ट। अब एक प्रॉब्लम हो गई इसमें कि दोनों भी रिएक्शन रिडक्शन की है। एक रिडक्शन रहेगा तो दूसरे को ऑक्सीडेशन तो होना ही पड़ेगा। दोनों रिडक्शन का सेल बनेगा क्या? नहीं। तो इसमें से एक रिएक्शन ऑक्सीडाइज होगी, एक रिड्यूस होगी। अब कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, ये यहां से समझ सकते हैं क्या हम? देखिए, जिसका पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा। पोटेंशियल किसका ज्यादा है? Fe का। और पोटेंशियल कम किसका है? आयोडीन का। तो इसका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। अभी कौन सी रिएक्शन लिखा हुआ है? ये रिडक्शन लिखा है। इसने काय में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन में। करेक्ट है। इसको अगर मैं ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करूं तो रिवर्स करके रिएक्शन लिखना है, और क्या है ना। ट्वाइस I minus 1 will give iodine plus 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, रिवर्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन को रिवर्स किया तो इसकी वैल्यू का जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। दिस विल बिकम -0.54 होगा ना। रिएक्शन को रिवर्स किया तो साइन को भी रिवर्स कर दो, हो गया। अब क्या करना होगा हमको? व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड दिस टू, इन दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन एडिशन के पहले एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो 2 लूज कर रहा है और गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ट्वाइस Fe3 plus 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव ट्वाइस Fe2 प्लस, और इसकी वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1.54 वोल्ट। तो अब आपको ये दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देना है। ऐड दिस टू पोटेंशियल, कम ऑन, ऐड देम टुगेदर। तो 1.54 ये प्लस में है, -0.54 विल गिव 1.00 वोल्ट। तो ये क्या आ गया? 1 रेडॉक्स रिएक्शन का सम कितना है? सम कितना मिला आपको? 1 वोल्ट, एंड देयरफॉर इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा क्या? कि कोई भी 2 इलेक्ट्रोड को कपल कीजिए, आप कोई भी 2 इलेक्ट्रोड को ज्वाइन करो और उसमें का रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये वैल्यू से हम पता कर सकते हैं। करेक्ट। मैं आपको कुछ वैल्यू देता हूं, आप जरा उसे फॉलो करेंगे। देखते हैं इस वैल्यू को, है ना। क्या है अपने पास में? केयरफुली, Cd2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cd सॉलिड, और इसका पोटेंशियल है -0.40 वोल्ट। सेकेंड, Zn2 प्लस, अभी आपने ऊपर लिखा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Zn सॉलिड, और इसका पोटेंशियल अभी आपने लिखा है
0.77 वोल्ट। अब इसमें ही हम कॉपर को ऐड कर देते हैं। कॉपर Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu सॉलिड, और इसका पोटेंशियल है प्लस 0.33 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट। This is the information we have. Now what you have to do, आपको पहले ये दोनों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखना है, उसके बाद ये दोनों का ऑक्सीडेशन, यानी एक कैडमियम और जिंक और दूसरा कैडमियम एंड कॉपर। आई थिंक क्वाइट क्लियर। ये दोनों का रेडॉक्स रिएक्शन लिखना है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और बताना है कि वेदर द रिएक्शंस ऑफ दिस टू आर स्पॉन्टेनियस और नॉट। यानी क्या करना होगा, हिंट में थोड़ा सा दे दूं आपको, एक रिडक्शन रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक रिडक्शन रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तब रेडॉक्स बनेगा आपका। राइट नाउ तीनों भी रिडक्शन के फॉर्म में है। जो लोअर है उसका ऑक्सीडेशन, ये कपल में देखो लोअर क्या है, ये कपल में देखो लोअर क्या है, लोअर का ऑक्सीडेशन करो, हायर का रिडक्शन करो। बस आप ऐसी दो रिएक्शन लिख लेंगे, और फिर अगर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है तो मल्टीप्लिकेशन करो और दोनों का सम कर लो। तो हमने जैसा ये सम किया, सम का आंसर देखो, अगर 1 और 1 से ज्यादा आ गया तो क्या रहेगा बेटा, अपना ये इलेक्ट्रोड रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रेडॉक्स रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होगा, और 1 से कम आ गया आंसर तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। सही है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रेडॉक्स। See you soon with the next chapter. Thank you very much.